Hello students, welcome to maths class. Today we are going to start our new chapter, linear equations in one variable. Learning outcomes means after watching this video you will be able to define these terms. Which terms? Equation, linear equation in one variable, solution of linear equation in one variable. You will be also able to find the solutions of the given linear equations in one variable. So our chapter name is linear equation in one variable. Term equation is there. So सबसे पहले हम clear करते हैं equation होता क्या है. Before defining equation, I want to discuss the term expression which you have already studied in previous chapter. It is a combination of constants and variables connected by four basic operations. जब constants और variables को इन फोर बेसिक ऑपरेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो जो चीज आपको मिलती है दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन और यू कैन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. 6x plus 3. Here you can see 6x is one term and 3 is another term. When both terms are connected by plus sign and we get an expression that is 6x plus 3. So here are few examples of expressions. So जब इन दो expressions को equality sign के साथ connect कर दें तो वो हमें क्या देगा? Equation. So what is an equation? An equation is made up of two expressions connected by an equal to sign. So जब भी दो expressions को equal to sign के साथ connect कर दिया जाए तो हमें क्या मिलती है? Equation. यहाँ पे देखिए 6x plus 3 is one expression, 5 is on other side. जब मैंने इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा दिया तो ये मेरी क्या बन गई है? इक्वेशन. सिमिलरली 4t minus 11 minus 3t ये हमारे पास एक्सप्रेशन था. जब मैंने इसे इक्वल टू 0 कर दिया या इक्वल टू समथिंग एल्स then it is a equation. सो बेटा एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल टू के राइट साइड जो एक्सप्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? RHS, और यू कैन से राइट हैंड साइड. Now, what is linear equation in one variable? Equation term is very much clear now. टर्म नेम से ही क्लियर होता है. क्या है? वन वेरिएबल. मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा. कि अगर x है तो उस इक्वेशन में सिर्फ x ही वेरिएबल होगा. नो अदर वेरिएबल विल बी देयर. कि x हो यहाँ पे 3 के साथ z लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है. x है तो x ही होगा. अगर z वेरिएबल है इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज z. सो टर्म लीनियर इज देयर. अब लीनियर का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ क्या होगी? 1. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. राइट? सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन which involves only one variable with highest power 1. ठीक है? सो हाईएस्ट पावर अगर 1 है वेरिएबल की, इट मीन्स वो कैसी इक्वेशन है? लीनियर. सो लेट्स टेक एग्जांपल x square plus 4 equal to 13. सो यू कैन सी x वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1. 1 से डिफरेंट है. So therefore it is not a linear equation, right? So x square plus 4 equal to 13 is not a linear equation. So let's define linear equation. Any equation of the form ax plus b equal to c, where a, b and c are rational numbers and a is not equal to 0 is called a linear equation in one variable. The next is solution of linear equation. It is the value of variable which satisfies the given equation. ऐसी value variable की जो equation को satisfy कर दे. Means
जिस वैल्यू के पुट करने पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो बेटा इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के वी हैव टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड, another is balancing an equation, or you can say systematic method. In our questions we will prefer transposition method. So हम अपने questions कैसे solve करेंगे, transposing method से ही करेंगे। Transposition method क्या होता है, the process of shifting a number from one side of the equation to the other side by changing the sign without affecting equality is called transposition. Means कि हम क्या करते हैं, हम टर्म्स को LHS से RHS की तरफ लेके जाते हैं by changing their sign. अगर प्लस का होगा तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा, अगर माइनस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सिमिलरली मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। मीन्स ट्रांसपोजिंग अ टर्म मीन्स सिंपली टेकिंग इट टू अदर साइड, दूसरी तरफ ले जाइए, एंड चेंजिंग इट्स साइन। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने एक इक्वेशन ली है 4y - 2 = 10। तो यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा यहाँ पे अननोन क्या है, दिस वेरिएबल इज y, मीन्स y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ट्रांसपोजिंग मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल उनको एक तरफ रखते हैं और बाकी कांस्टेंट टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4y जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ क्या लगा हुआ है, -2, तो मैं 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी। मीन्स मैं आई एम ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। मैं 2 को दूसरी तरफ राइट साइड पे लेके जा रही हूँ। माइनस का था लेफ्ट साइड में, अभी हमने पढ़ा कि वो क्या साइन चेंज कर लेता है, तो राइट साइड पे जाने पे ही -2 किस में चेंज हो गया, +2 में। सो आई हैव 4y = 10 + 2, दैट इज 4y = 12। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे तो y चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है लेफ्ट साइड में 4y, मीन्स y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 4। अब यहाँ जो मल्टीप्लाइड है जब ये दूसरी तरफ जाएगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ कैसे चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। सो क्या मिला मुझे, y = 12/4, दैट इज after cancellation we get 3. So y = 3 is the solution of this given equation. Next method is balancing an equation, or you can say systematic method. For balancing an equation we have 4 rules. वो 4 rules क्या हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर इक्वेशन की एक तरफ जो आप नंबर ऐड करेंगे वही नंबर आप दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे। Any number added to one side must be added to other side too. सिमिलरली सेकेंड रूल क्या है कि अगर एक नंबर जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे वही सेम नंबर आप राइट साइड पे से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देते हैं। x - 8 = 17, ये इक्वेशन गिवन है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, -8। तो ये -8 है तो +8 करने पे ये क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, 8 ओमिट हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने 8 ऐड किया है लेफ्ट साइड पे, तो मैं राइट साइड पे भी बैलेंसिंग रखते हुए क्या करूंगी, 8 को ऐड करूंगी। तो लेफ्ट साइड पे -8 पे +8 cancel out, we have x = 17 + 8 = 25. In this way we get the solution x = 25. So second rule is कि अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों तरफ करेंगे। x + 5 = 8, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x में क्या ऐड हो रहा है, 5, तो मीन्स 5 सब्ट्रैक्ट करने पे x की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट किया है।
-5 लेफ्ट साइड, तो दूसरी तरफ भी मैंने -5 किया है. सो लेफ्ट साइड से रह गया x और 8 - 5 gives you 3. In this way we get x equal to 3 is the solution of given equation. इसी तरह रूल 3 और रूल 4 कहता है. रूल 3 कहता है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी उसी नंबर के साथ आप सेम नॉन जीरो नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे. Let's clear the concept with the help of example. X over 9 equal to 8. यहाँ पे देखिए मुझे x के साथ डिवाइड क्या हो रहा है 9. तो मुझे x वैल्यू लेने के लिए, x निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ. तो मैं राइट साइड पे भी 9 के साथ क्या कर रही हूँ, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, क्या मिला x. इधर राइट साइड पे 8 into 9 gives you 72. 8 9s are 72. चलिए फोर्थ रूल, we can divide both sides of an equation by the same non-zero number. कि अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो सेम नॉन जीरो नंबर के साथ दोनों तरफ डिवाइड करूंगी. फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन 4x इक्वल टू 48, मुझे तो x चाहिए, 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है तो मीन्स 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने दोनों तरफ 4 के साथ डिवाइड किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, राइट साइड पे 4 से 48 कैंसिल हुआ, तो वी गेट 12. सो x इक्वल टू 12. ये था हमारा दूसरा मेथड, दैट इज बैलेंसिंग एन इक्वेशन. बेटा बट इन आवर वर्कशीट्स वी विल प्रेफर ट्रांसपोजिंग मेथड, जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा है. चलिए अब सीखते हैं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. द इक्वेशन इज 5x - 2 equal to 18. Solve means we have to find its solution. Solution means unknown की value find out करना. Unknown क्या है, variable. Variable क्या है यहाँ पे, x. Means मुझे x की value find out करनी है. So beta here I am using transposing method. So transposing method को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत easy method है. ऐसे में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं और बाकी की कांस्टेंट टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं. 18 इज ऑलरेडी ऑन राइट हैंड साइड और 2 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे. मीन्स हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं 2 की. जब ट्रांसपोजिंग करते हैं तो साइन अभी हमने पढ़ा कि चेंज होता है. माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाना था, माइनस. यस, ट्रांसपोजिंग, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम ट्रांसपोजिंग का, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस स्टेप हियर. अदरवाइज नो नीड टू राइट. ट्रांसपोजिंग 2 to राइट हैंड साइड. So we have 5x equal to 18 plus 2 that is 20. So यहाँ पे 5x की वैल्यू मिली है बेटा. हमें क्या फाइंड आउट करना है, x. तो x किसके इक्वल होगा, 20. जो 5 इधर मल्टीप्लाइड में है वो जब राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाता है, ट्रांसपोजिंग में, डिवीजन में. सो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 4s are 20. So in this way we have x equal to 4 as solution. Now after solution the question is check your answer. Means अब मुझे चेक करना है कि whether it is correct or not. अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो given equation है वहां पे हम x जहां पे दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, x equal to 4. अगर x equal to 4 पुट करने पे मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर मिल जाता है तो इट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का. सो मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. सो आई एम स्टार्टिंग विद LHS. लेफ्ट हैंड साइड इस गिवन इक्वेशन की इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे जो है दैट इज LHS. सो इट इज 5x - 2. तो मैं किसके लिए चेक कर रही हूँ, फॉर x इक्वल टू 4. So I will write for x equal to 4. हम x equal to 4 के लिए चेक कर रहे हैं. So 5 into 4 minus 2. This is equal to 5 4s are 20 minus 2. 20 minus 2 gives you 18.
क्या ये वाकई राइट साइड की? यस, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो वी हैव LHS equal to RHS, left hand side equal to right hand side. So therefore x equal to 4 is a solution of given equation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इक्वेशन इज 8x plus 5 equal to 6x minus 5. बेटा आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ ही x की टर्म्स हैं. जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 1, उसमें एक तरफ था x टर्म. अब जब दोनों तरफ x टर्म आएगा तो हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे. आई एम अगेन यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड. सो 8x, तो उधर से 6x वाली टर्म भी x वाली टर्म के साथ ही ले आइए. यहाँ 6x पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिंग में इसका साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 इक्वल टू यहाँ पे -5. ये एज इट इज, ये जो +5 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज. So we have 8x minus 6x is 2x equal to -5 minus 5 that is -10. So x, अब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या है, -10. मुझे क्या चाहिए, x. तो 2 जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, जब दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन. यस, डिवाइड हो जाएगा. सो 2 नीचे आ गया, 2 के साथ कैंसिलेशन. वी हैव x equal to -5. So after finding the value of x, we have to check the answer. So check के लिए अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने सीख लिया. check के लिए हम क्या करेंगे, for x equal to -5. x equal to -5 वैल्यू के लिए मुझे क्या शो करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो मैं LHS से स्टार्ट हो रही हूँ. इट इज 8x plus 5. x की वैल्यू क्या पुट करोगे, यस, जो हमें सॉल्यूशन में मिली है. क्या मिली है, x इक्वल टू -5. सो 8 into -5 plus 5. 8 into -5 that is -40 plus 5. This is equal to -35. लेफ्ट हैंड साइड हमें -35 मिल चुकी है. चलिए अब चेक करते हैं फॉर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज 6x minus 5. गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड इज 6x minus 5. सो जहां x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगी, -5. सो 6 into -5 gives you -30 minus 5. Again we have -35. In both the cases we get same value. So therefore LHS equal to RHS. So यहाँ पे चेक हमने कर लिया. इट मीन्स जो हमारा x की वैल्यू है वो क्या, -5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2/5z equal to 3/8z plus 7/20. अगेन इन दिस इक्वेशन दोनों तरफ ही क्या है, z की टर्म्स हैं. तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, z की टर्म्स को एक तरफ करना, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ, बाय ट्रांसपोजिंग. 2/5z. अब 3/8z जो राइट साइड में है वो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, यस, चेंज हो जाएगा, प्लस चेंजेस टू माइनस. So this is equal to 7/20. So beta left hand side में you can see we have two rational numbers, we have to subtract them. तो denominators क्या है, different, so we have to take LCM. So 5 और 8 का LCM क्या हो जाएगा, 40. 5 ने 40 को डिवाइड किया, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के 2 के साथ. So we have 16z minus 8 ने 40 को डिवाइड किया, वी हैव 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिला, 15z इक्वल टू 7/20. सो 16z minus 15z gives you z, 1z, that is z over 40 equal to 7/20. सो यहाँ से मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा. z
के नीचे क्या है 40 डिवीजन में है। ऑन ट्रांसपोजिंग जो इधर डिवीजन में है उधर जाके क्या हो जाता है, यस मल्टीप्लाई। अभी हमने सीखा था डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो फिर इधर आके डिवीजन में चेंज हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2s are 4, so 7 into 2 14। so z की वैल्यू मुझे क्या मिली 14। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, चेक पार्ट करते हैं किसके लिए, फॉर z इक्वल टू 14। सो चेक पार्ट में के लिए बेटा क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड, तभी हम बोलेंगे जो z की वैल्यू आई है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो LHS क्या है मेरे पास 2/5z इक्वल टू की लेफ्ट साइड क्या है 2/5z। तो z के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं हम, यस z की क्या वैल्यू मिली है हमें मुझे 14, तो 2/5 इंटू 14। सो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 14 2s are 28/5। सो लेफ्ट साइड मेरे पास आ चुकी है। नाउ आई विल फाइंड RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 3/8z प्लस 7/20। सो z के प्लेस में हमें पुट करना होता है जो हमारी वैल्यू आई है z की वैल्यू है 14 प्लस 7/20। तो बेटा इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 4s are 8, 2 7s are 14, कटिंग हो रही थी। सो 3 into 7 क्या मिला 21/4 प्लस 7/20। So again we have to add these two rational numbers, तो हम क्या करेंगे LCM is 20, 4 और 20 का LCM 20, 4 ने 20 को डिवाइड किया 5, और 5 ऊपर के साथ 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 into 5 gives you 105, 20 ने 20 को डिवाइड किया 1, 7 into 1 that is 7, so we have 112/20। कैंसिल हो रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। 4 5s are 20, 4 2s are 8, 3 आगे चला गया 32, 4 8s are 32। yes again we get 28/5, so we get same values on both the sides, so therefore LHS equal to RHS, hence क्या रिजल्ट कंक्लूड हुआ, z equal to 14 is solution of given equation। I hope now you can easily solve the given assignment questions। Thank you।